Very good morning, students. Today we are going to study section 41, that is transfer by ostensible owner. Now, transfer by ostensible owner means what? Before going through this provision, let us have a little bit idea about what do we mean by the term ostensible. Now, ostensible means of like nature. Ostensible means what? It means of like nature. Ostensible owner means a person who is though not a real owner of the property, but having all the characteristic of ownership. Then in that case, such person would be termed to be a ostensible owner. Whenever such ostensible owner makes a transfer of the property to some another person, the property which is in his own name, if transfers that property to some another person, what that particular transaction would be having a legal effect under the law, that is what we are going to study today. So, the provision has been provided under section 41, that is transfer by ostensible owner. Now, before going through the later provisions, it is very important for us to know what do we mean by the term ostensible. Ostensible means what? Ostensible means a person who is not the real owner of the property, but having all the characteristics of real owner. Now, what are all the characteristics of real owner? Real owner have a possession of that particular property, maybe actual or maybe constructive. The real owner is having a property in his name and his name is recorded in the public record as the owner of that particular property. Next is he is having all the rights relating to that particular property, it inclusive of the right to dispose of that particular property. Even in the eyes of the whole world, he is the owner of that particular property. So, ostensible owner means a person who is not the real owner of the property. That is to say, he is not actually the real owner, but he is having all the characteristics of the owner. That is why he is having a possession of the property, he is having a property in his name, he is in the eyes of the world the owner of that particular property, and he is having a right to dispose of that particular property in the eyes of the entire world. So he will be called as a ostensible owner. Now, if we take into consideration the general principle dealing with the transfer of property, what does it says? No person can transfer to another a right to title greater than what he himself possesses. कहने का मतलब है कोई भी पर्सन जिसको प्रॉपर्टी का टाइटल है ना, टाइटल है मीन्स व्हाट, ओनरशिप है, सिर्फ वही एक पर्सन जो है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट्स को ट्रांसफर कर सकता है. जिस पर्सन के पास में टाइटल नहीं है वो पर्टिकुलर पर्सन उस प्रॉपर्टी को मन मुताबिक डिस्पोज ऑफ करने का राइट या मन मुताबिक ट्रांसफर करने का राइट नहीं रखता है. ये जो प्रिंसिपल है ये बेस्ड है एक पर्टिकुलर मैगजीम के ऊपर और मैगजीम का नाम है नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट. नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट का मतलब ये होता है नो वन कैन ट्रांसफर बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज. यानी जो बेसिकली राइट मुझे प्रॉपर्टी में है मैं सिर्फ उतने ही राइट ट्रांसफर कर सकती हूँ किसी और को. जो राइट मुझे ही नहीं है वो मैं किसी और को कैसे ट्रांसफर करूंगी. तो सिमिलर मैनर में सपोज इफ आई डू नॉट हैव अ टाइटल ओवर दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी नॉर एज अ लेसी नॉर एज अ मॉर्गेजी nor as a donee nor as a purchaser, so how can I am going to sell that particular property, how can I am going to donate that particular property, how can I am going to gift that particular property, how can I am going to lease out that particular property if I do not have such kind of the title attached to that particular transaction with me. Therefore, a person who do not have a better title, he cannot transfer that particular title to somebody else. So that is what the meaning of this particular maxim is. Now we have an exception to this particular rule, general rule. There is an exception to this particular general rule, that is to say transfer by the ostensible owner. Students, यहाँ पे जो पर्सन है वो रियल ओनर नहीं है बट उसको सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रियल ओनर के और वो पर्टिकुलर पर्सन प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है.
अभी ऊपर वाले स्लाइड्स में हमने क्या देखा है कि जो पर्सन के पास में बेटर टाइटल नहीं है, वो पर्टिकुलर जो उसके खुद के पास में टाइटल नहीं है, वो टाइटल किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता। बट यहाँ पे ये ऑस्टेंसिबल ओनर है, इसके पास ये रियल ओनर नहीं है पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का, बट ये लाइक ओनर है। कहने का मतलब है इसको सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं अवेलेबल हैं ओनरशिप के, और उसके द्वारा प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर की जा रही है। तो उसको लॉ में क्या इफेक्ट रहेगा? नाउ दी एंटायर प्रोविजंस यहाँ पे आके हमको समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट अस सी, if the true or a real owner of the property permits another to hold himself out as a real owner, a third person who deals in a good faith with that other person may acquire a good title to the property as against the true owner. What does this mean? इसको पढ़ने के बाद में एक चीज समझ में आती है कि ट्रू ओनर और रियल ओनर एक पर्सन है, वो दूसरे पर्सन को परमिट कर रहा है कि भाई तुम रियल ओनर बन जाओ इन द आइज ऑफ लॉ। ठीक है, सपोज इफ अवंती सेज टू सुशांत कि आप जो है वो रियल ओनर बन जाओ, किसकी आइज में? लॉ की आइज में। और ऐसे वक्त में सुशांत यदि किसी थर्ड पर्सन को, सपोज फॉर एग्जांपल के तौर पे इफ अधिष्ठा को वो क्या करता है? प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, then in that case who deals in good faith with that other person may acquire a good title। और सुशांत का भी जो बेसिकली पर्पस है वो क्या है कि सामने वाले ने गुड टाइटल इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में, अधिष्ठा ने गुड टाइटल इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे अक्वायर करना चाहिए। देन इन दैट केस, और यदि मान लीजिए जो थर्ड पर्सन है उसने भी पूरी केयर ली है ये पता करने के लिए कि हु इज द रियल ओनर ऑफ द पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, क्योंकि जो रियल ओनर है वही प्रॉपर्टी के राइट ट्रांसफर कर सकता है। ऐसे वक्त में जो भी ट्रांजैक्शन सुशांत और अधिष्ठा के बीच में होगा वो किसके ऊपर बाइंडिंग होगा? वो रियल और ट्रू ओनर जो है उसके ऊपर बाइंडिंग रहेगा, जो सबसे पहले ओनर था प्रॉपर्टी का, जिसने परमिट किया किसी दूसरे को प्रॉपर्टी अपने नाम पे होल्ड करने के लिए, उस पर्टिकुलर रियल ओनर के ऊपर वो ट्रांजैक्शन बाइंडिंग रहेगा। Now let us see if a true or a real owner of the property permits another। तो ये true और real owner of the property a person है, अगर ये परमिट करता है to hold himself out as a real owner, और वो परमिट कर रहा है दूसरे पर्सन को कि तुम मुझे रियल ओनर ना करके तुम रिप्रेजेंट हो जाओ एज अ ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, यानी बी को कह रहा है a third person who deals in the good faith with that other person may acquire a good title to the property as against the true owner। और सी जो है उसको ऐसा लगता है कि वो ये बी के साथ में जो ट्रांजेक्शन कर रहा है वो गुड फेथ में कर रहा है, और गुड फेथ में ट्रांजेक्शन करने से उसको उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर गुड टाइटल मिल जाएगा, एंड दैट पर्टिकुलर टाइटल जो है इट ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइटल he'll be a owner against the whole world in relation to that particular property। then in that case यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हुआ है हम कहेंगे रियल ओनर जो है वो ए है, बी जो है वो ऑस्टेंसिबल ओनर है, क्योंकि वो क्या है, उसको ए ने अथॉरिटी दी है, परमिट किया है कि तुम मेरी जगह क्या बन जाओ? रियल ओनर बन जाओ इन द आइज ऑफ लॉ। रियल ओनर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? उसका पब्लिक रिकॉर्ड में नाम है एज अ ओनर, डॉक्यूमेंट सारे उसके नाम पे है, और देखा जाए तो उसको वो बिकॉज डॉक्यूमेंट सारे उसके नाम पे है तो ही इज हैविंग ईच एंड एवरी राइट इन द आइज ऑफ लॉ टू डील विद दैट पर्टिकुलर टाइटल। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट अगर थर्ड पर्सन कोई ट्रांजेक्शन करता है तो वो ट्रांजेक्शन जो बी और सी के बीच में हुआ है वो ए के ऊपर बाइंडिंग रहेगा। अब ये बात आई कहाँ से? तो मैं आपको बताऊं, ये बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट के अंतर्गत आई। बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट में क्या है स्टूडेंट्स कि पहले लोग जो है वो टैक्स बचाने के लिए अपने घर के मेंबर्स के नाम पे या फ्रेंड्स के नाम पे या जान पहचान वालों के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदते थे, है ना। एक पर्सन के नाम पे बहुत सारी प्रॉपर्टी रहेगी तो ही हैव टू पे टैक्स। तो हम जो एक टैक्सेबल इनकम से जो लिमिट है बेसिकली उसमें अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम और लोगों के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदते हैं। और ऐसे वक्त में अगर मान लीजिए ये प्रैक्टिस अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो क्या होगा, बहुत सी प्रॉपर्टी ऐसी होगी जो कि टैक्स होने से बच जाएगी या टैक्स लगने से बच जाएगी। तो इस चीज से बचने के लिए ये प्रोविजन लाया गया। इसमें ऐसा बोला गया कि अगर मान लीजिए परचेसर कोई प्रॉपर्टी का और है जो कि ओनर है, यदि वो अपने नाम से प्रॉपर्टी ना खरीदते हुए किसी दूसरे के नाम से प्रॉपर्टी खरीदता है, बट पैसे तो रियल ओनर के लगे हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए,
बट उसने प्रॉपर्टी जो है वो किसी दूसरे पर्सन के नाम पे खरीदी है और उसको पब्लिक रिकॉर्ड में एज अ ओनर दिखा दिया है। ऐसे वक्त में यदि मान लीजिए ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एंट्री इन द पब्लिक रिकॉर्ड, यदि ये ऑस्टेंसिबल ओनर जो कि पूरे कैरेक्टरिस्टिक रखता है रियल ओनर के, अगर वो प्रॉपर्टी किसी थर्ड पर्सन के पास में ट्रांसफर कर देता है तो दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन विल बी हैविंग अ बाइंडिंग इफेक्ट ओवर दी रियल ओनर। और रियल ओनर उस वक्त ये नहीं बोल सकता कि भाई ये ट्रांजेक्शन मुझे बाइंडिंग नहीं है फॉर द रीजन ये प्रॉपर्टी मेरी है, हु इज ही टू ट्रांसफर माय प्रॉपर्टी टू सम अदर पर्सन, ही कैन नॉट से सो। फॉर द रीजन क्यों नहीं बोल सकता है? क्योंकि इन द पब्लिक रिकॉर्ड द अनदर पर्सन इज द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी एंड दैट अनदर पर्सन वुड बी कॉल्ड एज अ ऑस्टेंसिबल ओनर। Now let us see similar provisions जो है we would find under section 115 of the Indian Evidence Act 1872 also. Here it is in the name of rule of estoppel. कहने का मतलब है कि हम रियल ओनर को क्या कर देते हैं? स्टॉप कर देते हैं। नहीं, आपने दे दिया राइट और आपने किसी और को रियल ओनर करके पब्लिक रिकॉर्ड में दिखाया, अब जो भी वो ट्रांजेक्शन करेगा वुड बी हैविंग अ बाइंडिंग इफेक्ट ओवर यू। Therefore, we by virtue of this particular provision, stop the real owner by challenging that particular transaction to be a void one. Now, अगर हम बात करते हैं इस case law की, then in that case, in this case law, it was observed by the court that if a man either by words or by the conduct has intimated that he consent to an act which has been done and that he will offer no opposition to it, कहने का मतलब है अगर कोई पर्सन अपने वर्ड्स के द्वारा या फिर कंडक्ट के द्वारा ये इंटीमेट करता है कि वो सामने वाले पर्सन के द्वारा किए गए एक्ट को कंसेंट देता है या फिर अपोज नहीं कर रहा है, कंसेंट नहीं दे रहा है पर अपोज भी नहीं कर रहा है, although it could not have been lawfully done, भले फिर वो lawfully नहीं होता without consent, and thereby induces other to do that from which they might have abstained, या फिर हम दूसरे पर्सन को कुछ ऐसा काम करने के लिए इंड्यूस करते हैं जो कि एक्चुअली उसने नहीं किया रहता। He cannot question the legality of the act he had so sanctioned. ऐसे वक्त में यदि मान लीजिए वो पर्सन ने अगर कोई एक्ट कर दिया तो रियल ओनर जो है या फिर जो फर्स्ट मैन है वो उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता ये बोलते हुए कि दिस पर्टिकुलर एक्ट को करने के लिए मैंने आपको परमिशन नहीं दी थी। अगर मान लीजिए सामने वाला पर्सन चुप रहता है, ऑब्जेक्शन भी नहीं रेज करता है, बट अर्लियर ये पर्सन के द्वारा किए गए सारे एक्ट्स को परमिट करता रहता है, देन इन दैट केस अभी जो एक्ट हुआ है पर्सन के द्वारा, अनदर पर्सन के द्वारा, दैट वुड बी हैविंग अ बाइंडिंग इफेक्ट ओवर दिस पर्टिकुलर फर्स्ट पर्सन, द फर्स्ट मैन। एंड इन दैट केस यहाँ पे भी जो रियल ओनर है वो अनदर पर्सन है, उसने परमिट किया दूसरे पर्सन को एज अ ओनर करके शो किया पब्लिक रिकॉर्ड में, और ऐसे वक्त में अगर मान लीजिए जो पर्सन है जिसको शो किया है पब्लिक रिकॉर्ड में एज अ ओनर करके, जिसे हम ऑस्टेंसिबल ओनर बोल रहे हैं, यदि इफ ही ट्रांसफर्स अ प्रॉपर्टी टू थर्ड पर्सन, देन इन दैट केस रियल ओनर cannot question, he cannot question the transaction which has taken place between the between the ostensible owner and the transferee. Now in this case, Ram Coomar versus McQueen, in this case this principle was considered to be a principle of natural equity, and it is universally applicable that where one man allows another to hold himself out as a owner of an estate and a third person purchases it for value, कहने का मतलब है एक पर्सन जो है यदि वो किसी दूसरे पर्सन को अलाउ करता है कि वो अपने आप को प्रॉपर्टी का ओनर दर्शाए, एंड थर्ड पर्सन जो है यदि परचेस करता है उस पर्टिकुलर पर्सन से प्रॉपर्टी और उसके लिए वो वैल्यू भी पे करता है फ्रॉम द एपरेंट ओनर इन दैट बिलीव, यहाँ पे एपरेंट ओनर कौन है? जो दिख रहा है ओनर करके, ही इज द ऑस्टेंसिबल ओनर, believe that he is a real owner, a man who so allows the other hold himself out shall not be permitted to recover upon his secret title unless he can overthrow that of the purchaser by showing either that he had direct notice or something which amounts to constructive notice of the real title, or that there existed the circumstances which ought to have put him upon an inquiry that if prosecuted would have led to a discovery of it. कहने का मतलब है यहाँ पे जो रियल ओनर है यदि वो ट्रांजेक्शन को चैलेंज करना चाहता है तो उसको कुछ चीजें प्रूफ करनी पड़ेगी।
उसको क्या चीजें प्रूव करनी पड़ेगी कि उसको इस बात का डायरेक्ट नोटिस था क्या कि ये सामने वाले के साथ में ट्रांजेक्शन हो रहा है, दैट ही हैड अ डायरेक्ट नोटिस और समथिंग विच अमाउंट टू अ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ द रियल टाइटल, यानी जो परचेसर है उसको अच्छे से पता था कि रियल ओनर ये नहीं है, रियल ओनर सम अनदर पर्सन है, बट उसका कंस्ट्रक्टिव नोटिस या रियल नोटिस होने के बावजूद भी या फिर जो सर्कमस्टेंसेस हैं उससे भी साफ साफ जाहिर हो रहा था कि रियल ओनर सम और पर्सन है, बट ये जानते हुए भी परचेसर हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद द पर्सन हु वाज एक्चुअली द ऑस्टेंसिबल ओनर एंड हेंस therefore the transaction between the ostensible owner and the transferee need to be declared to be a void one। ये चीज प्रूव करना पड़ेगा किसको, ये चीज प्रूव करना पड़ेगा रियल ओनर को, अदरवाइज ऑन द बेसिस ऑफ द रिकॉर्ड तो ऑस्टेंसिबल ओनर इज द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी एंड ऑन द बेसिस ऑफ द एंट्री इन द public record he can transfer that particular property to whosoever he wants for the consideration, and in that situation even if the real owner want to challenge the same, he won't be in a position to challenge the transaction। now बेनाम ट्रांजेक्शन या फिर बेनामी ट्रांजेक्शन, व्हाट डज दिस मीन? A law under section 41 is now made subject to the provision of Benami transaction, that is to say prohibition of the right to recovery property। यहाँ पे बेनामी ट्रांजेक्शन अगर कोई करता है यानी कि किसी और के नाम पे हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं, देन इन दैट केस ये जो बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट है ये हमको प्रोहिबिट करेगा हमारी प्रॉपर्टी को वापस से रिकवर बैक करने के लिए एंड परमिट नहीं करेगा, फॉर द रीजन दैट वंस you have transferred the property in the name of the another person, so far as the public record is concerned, that another person would be having a right over that particular property। now let us see, Benami transaction means what? Any transaction in which the property is transferred to one person for consideration paid or provided to another person, this means this is called as a Benami transaction। any transaction जिसमें property जो है वो transferred की गई है एक person के द्वारा दूसरे person को, किस लिए? consideration के लिए, वो consideration जो भी हमने paid है या फिर provided है या promised है by another person, then in that case such kind of a transaction would be termed to be a Benami transaction। now Benamidar मतलब कौन कौन होते हैं? तो there are list of the person who may be called as a Benamidar। सबसे पहले तो आता है ऐसा कोई भी person, Benamidar मतलब वो होगा the other person whose name is used as a owner of the property, it is very simple। second one, he is a person in whose name the property is purchased। एक तो हमने ओनर करके जिसका नाम यूज किया है या फिर जिसके नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी है उसे हम ऑस्टेंसिबल ओनर कहेंगे। he holds the property on behalf of real owner because he is not a real owner। वो रियल ओनर नहीं होता है लेकिन वो रियल ओनर के बिहाफ में प्रॉपर्टी अपने पास होल्ड करता है। अगर हम प्रोविजन देखते हैं बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट का, तो इफ अ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बेनामी, अगर प्रॉपर्टी जो है वो बेनामी ट्रांसफर की जाती है इन द नेम ऑफ अनदर पर्सन, द पर्सन इन हुज नेम द प्रॉपर्टी इज हेल्ड शैल बिकम अ रियल ओनर। अगर बेनामी ट्रांजेक्शन के तहत तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है किसी दूसरे पर्सन के नाम पे, तो जिस भी पर्सन के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है दैट पर्टिकुलर पर्सन वुड बी डीम्ड टू बी द रियल ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। अब ऑन द बेसिस ऑफ दैट यह सेटल्ड लॉ हो गया है कि ऑस्टेंसिबल ओनर और बेनामीदार जो है वो हैज नाउ बिकम अ रियल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, एक्सेप्ट, लेकिन इसमें दो सिचुएशंस कवर नहीं होती है। दो एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं इसको? अगर प्रॉपर्टी वेयर अ कोपार्टनर इन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अगर मान लीजिए कि जो रियल ओनर है यदि वो कोपार्टनर है, तो कोपार्टनरी राइट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, हमने पढ़ा था इसके पहले। तो अगर कोपार्टनर है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में तो उसका राइट किसी भी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं होगा और दूसरा पर्सन भी उस पर एज अ क्लेम ऑस्टेंसिबल ओनरशिप का नहीं करेगा। नेक्स्ट इज अ ट्रस्टी स्टैंडिंग इन अ फिड्यूशियरी कैपेसिटी। ट्रस्टी जो होता है जो कि फाइनेंशियल कैपेसिटी में पे रहता है ट्रस्ट के, और इसीलिए हम कहेंगे कि वो भी एज अ ऑस्टेंसिबल ओनर नहीं होगा। हाँ डेफिनेटली अगर मान लीजिए वो रियल ओनर है और खुद ही अपने आप को ट्रस्टी उसने अपॉइंट कर लिया है, देन इन दैट केस भी वो रियल ओनर ही रहेगा, ओनर ही रहेगा, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ऑस्टेंसिबल ओनरशिप अराइज। और अगर सपोज मान लीजिए ट्रस्ट मैंने खोला है और आपको अपॉइंट कर दिया है एज अ ट्रस्टी करके, देन इन दैट केस ऑल्सो भी भले ही प्रॉपर्टी ट्रस्ट में है, ट्रस्टी जो है वो टेक केयर करता है, उसको मैनेज करता है, उसको एडमिनिस्टर करता है, बट उसको एज अ ऑस्टेंसिबल ओनर करके क्लेम नहीं कर सकता। सो दीज टू आर द पर्सन हु आर एग्जम्प्टेड of being called as a ostensible owner even though they may be having a property in possession with them।
नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ वाइफ और एन अनमैरिड डॉटर। काफी बार ऐसा होता है कि हम प्रॉपर्टी जो है वो अपनी वाइफ के नाम पे या फिर अनमैरिड डॉटर के नाम पे खरीद लेते हैं। ऐसे वक्त में यदि मान लीजिए हमने ये प्रूव कर दिया, इफ अ पर्सन परचेज अ प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ हिज वाइफ और एन अनमैरिड डॉटर shall be presumed that the said property has been purchased for the benefit of the wife and the unmarried daughter। और ऐसे वक्त में वाइफ या फिर अनमैरिड डॉटर जो है उनको, क्योंकि उनके बेनिफिट के लिए है, तो वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते विदाउट दी कंसेंट। तो कहने का मतलब है कि भले ही प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसा किसी और का लग रहा है और पब्लिक डॉक्यूमेंट में जो प्रॉपर्टी है इज इन द नेम ऑफ वाइफ और इज इन द नेम ऑफ अनमैरिड डॉटर, बट क्योंकि ये इनके बेनिफिट के लिए है, देयरफॉर इवन ये लोग भी जो हैं वो ऑस्टेंसिबल ओनर उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के नहीं कहलाए जाएंगे। दे वुड बी कंसिडर्ड टू बी द रियल ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज नंद किशोर मेहरा वर्सेस सुशीला मेहता का जो केस है, इसमें इट वाज हेल्ड दैट वेयर अ पर्सन परचेसेस अ प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ हिज वाइफ और एन अनमैरिड डॉटर, ही कैन क्लेम द प्रॉपर्टी लेटर इफ ही प्रूव्स दैट इट वाज नॉट परचेस्ड फॉर देयर बेनिफिट। लेकिन यदि मान लीजिए पर्सन जो है वो अपनी वाइफ या अपनी अनमैरिड डॉटर के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदता है और वो प्रॉपर्टी उसने उनके बेनिफिट के लिए नहीं खरीदी है, तो डेफिनेटली वो लेटर ऑन ये प्रूव करके कि वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी उनके बेनिफिट के लिए नहीं खरीदी है, वो क्या कर सकता है, प्रॉपर्टी को रिकवर बैक मांग सकता है या क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट इज, अगर मैं बात करूं कि सेक्शन 41 के इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, तो फॉलोइंग इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, इनमें से अगर एक भी मिसिंग है देन इन दैट केस हम ये नहीं कहेंगे कि ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन जो है वो ऑस्टेंसिबल ओनर के द्वारा किया गया ट्रांजेक्शन है। तो क्या क्या चीजें होना जरूरी है, पहले ट्रांसफरर मस्ट बी एन ऑस्टेंसिबल ओनर। Second, the transfer of the property to the ostensible owner must be with an express or implied consent of the real owner. Third, the transfer by the ostensible owner must be for consideration. And fourth, the transferee must have acted in a good faith। जिस भी पर्टिकुलर पर्सन को हमने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है उसने गुड फेथ में एक्ट करना चाहिए, रीजनेबल केयर लेनी चाहिए ये पता करने के लिए कि ट्रांसफरर को रियली वाकई में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का राइट है या नहीं, और ये जानने के लिए वो सिर्फ क्या कर सकता है, देखा जाए तो सर्च रिपोर्ट निकाल सकता है या पब्लिक रिकॉर्ड देख सकता है। अगर पब्लिक रिकॉर्ड में उसका नाम मान लीजिए एज अ ओनर करके है, तो डेफिनेटली वी वुड कंसिडर दैट अंडर द लॉ ही इज हैविंग अ राइट टू डिस्पोज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इन द मैनर ही want to, and accordingly on the basis of that, suppose if we purchase the property from the ostensible owner, then in that case such type of a transaction would be having a binding effect over the real owner। Now ostensible owner जो है वो कौन होता है? Ostensible owner is a person who is not a real owner of the property, but he has all the indicia of ownership without being a real owner, and he is a person who is apparently the unqualified person to be called as a owner and not a person who is qualified owner, um, like a mortgagee or a hirer of the good. So these are the person who will be called as a ostensible owner। Now let us see in Jayadayal Poddar versus Bibi Hazra, whether a person is an ostensible owner is not, ये एक substantive question था जिसको डिसाइड करने के लिए कुछ सर्कमस्टेंसेस फ्रेम किए गए और बोला गया कि कुछ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे हम बेसिकली तय कर पाएंगे कि पर्सन जो है वो रियल ओनर है या नहीं। नाउ लेट अस सी क्या क्या फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस इन्होंने बताए। इन्होंने कहा कि व्हाइल डिसाइडिंग द टर्म फॉलोइंग कंसिडरेशन को हमको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला है सोर्स ऑफ द परचेस मनी, प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए मनी कहाँ से आया, दैट इज व्हाट वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन। सेकंड, नेचर ऑफ द पोजीशन आफ्टर द परचेस, यानी कि ये पोजीशन फिजिकल है या कंस्ट्रक्टिव है पर्सन के पास में, ये हमको देखना है। नेक्स्ट इज मोटिव ऑफ गिविंग बेनामी कलर टू द ट्रांजेक्शन, बेनामी कलर देने के पीछे जो रियल ओनर है जिसने एक्चुअली प्रॉपर्टी खरीदी है उसका पर्पस क्या है, क्या ये किसी के बेनिफिट के लिए है, अनमैरिड डॉटर या वाइफ के बेनिफिट के लिए है या बेनिफिट के लिए नहीं है, या फिर लोगों को मान लीजिए कि फ्रॉड करने के पर्पज से प्रॉपर्टी जो है वो किसी और के नाम पे खरीदी गई है। दिस इज ऑल व्हाट द मोटिव बिहाइंड दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन टू बी कंसिडर टू बी बेनामी ट्रांजेक्शन, इसको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज, पार्टीज के बीच में रिलेशनशिप क्या है, एंड कंडक्ट ऑफ द पार्टीज इन डीलिंग विद द प्रॉपर्टी, और पार्टीज का कंडक्ट क्या है जब वो प्रॉपर्टी के साथ डील कर रहे हैं, क्या वहां पे वो एज अ ओनर करके कंडक्ट कर रहा है या एज एन एजेंट करके कंडक्ट कर रहा है, या फिर वो प्रॉपर्टी को उसके नाम पे जो है उसके पूरे राइट डिस्पोज ऑफ कर रहा है, क्या उसमें किसी तरीके का इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट या एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज के बीच में दिखाई दे रहा है, दैट इज ऑल वी हैव टू कीप इन कंसिडरेशन। नेक्स्ट इज बर्डन ऑफ प्रूफ दैट द ट्रांजेक्शन इज बेनामी,
बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है कि ट्रांजेक्शन जो है वो बेनामी है, ये किसके ऊपर होता है? तो जो भी पर्सन ये क्लेम करना चाहता है कि वो रियल ओनर है और उसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की है, दूसरे पर्सन ने जिसके नाम पे उसने प्रॉपर्टी खरीदी थी उसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है और इसीलिए इस ट्रांजेक्शन को वॉइड डिक्लेयर किया जाए, ये बात प्रूफ करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? रियल ओनर को होती है। क्यों रियल ओनर को होती है? क्योंकि रियल ओनर के पास में ना तो प्रॉपर्टी है अभी उसके नाम पे और भले ही पैसा उसका लगा है बट ही डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन, और ऑस्टेंसिबल ओनर जो है भले ही उसने उसका पैसा ना लगाया हो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, बट क्योंकि उसका नाम पब्लिक रिकॉर्ड में है, he is having a right to dispose of that particular property according to his will and wish, and accordingly देखा जाए तो ये जो ट्रांजेक्शन है ये बेनामी है, ये बात प्रूफ करने की जिम्मेदारी जो है वो रियल ओनर की होती है। नाउ फॉलोइंग पर्सन जो है इनको हम कहेंगे कि ये ऑस्टेंसिबल ओनर की कैटेगरी में कवर नहीं होते हैं। इसमें केस लॉज भी दिए गए हैं। सबसे पहले अ मैनेजर इन पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, क्योंकि वो तो मैनेजर है, सिर्फ मैनेज कर रहा है तो वो अपने आप को ऑस्टेंसिबल ओनर कंसिडर नहीं करेगा। ये डिसाइड किया गया था या हेल्ड किया गया था इन द केस ऑफ मोहम्मद सुलेमान वर्सेस सकीना बीबी। नेक्स्ट इज लाइसेंसी जो होता है, यानी जिसको हमने रेंट पे दिया है प्रीमाइसेस है ना, वो भी अपने आप को ऑस्टेंसिबल ओनर कंसिडर नहीं कर सकता। ये डिसाइड हुआ था चुन्नीलाल वर्सेस नील माधव। नेक्स्ट इज मेनियल सर्वेंट इन द ऑक्यूपेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। Menial servant in the occupation of the property was again held to be the owner of is not considered to be the ostensible owner of that particular property. Next is the professed agent. A professed agent means what? A person who has been appointed as an agent. Then in that case उसे भी हम कहेंगे कि cannot be considered to be the ostensible owner of that particular property. मेनियल सर्वेंट का मतलब क्या होता है? मेनियल सर्वेंट का बेसिकली मतलब होता है जिसको बहुत ज़्यादा स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और जिसमें बहुत ज़्यादा वो स्किलफुल पर्सन नहीं होता है। देयरफॉर अगर ऐसे किसी पर्सन को हमने हमारी प्रॉपर्टी में अपॉइंट किया हुआ है, रखा हुआ है किसी भी कैपेसिटी में, तो वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वुड नॉट बी कंसिडर्ड टू बी दी ऑस्टेंसिबल ओनर। नेक्स्ट इज प्रोफेस्ड एजेंट जो है वो भी ऑस्टेंसिबल ओनर नहीं है। दिस वाज हेल्ड बाय द केस डांबर सिंह वर्सेस जावित्री। नेक्स्ट अ मैनेजर और अ ट्रस्टी ऑफ एन आइडॉल, ये हमने देखा अभी, रतन सेन वर्सेस सूरज भान। एंड अ डोनर हु हैज नॉट रिजर्व्ड टू हिमसेल्फ एनी पावर ऑफ रिवोकेशन ऑफ द गिफ्टेड। इवन जो डोनर है जिसने प्रॉपर्टी अगर गिफ्ट करते वक्त में अपने पास में रिवोकेशन का पावर नहीं रखा है, देन इन दैट केस वो पर्टिकुलर पर्सन भी अपने आप को ऑस्टेंसिबल ओनर डिक्लेयर नहीं कर सकता। दिस वाज हेल्ड बाय द केस इन चुन्नीलाल वर्सेस नील माधव। देन को शेयरर इन ऑक्यूपेशन ऑफ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। जो को शेयरर होते हैं जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में, जैसे हमने आपको बताया कि को पार्टनर्स जो हैं वो कवर नहीं होते हैं ऑस्टेंसिबल ओनर की डेफिनेशन में। एंड को पार्टनर ने अगर किसी और को भी अपॉइंट कर दिया, जैसे को शेयरर है अगर कोई उस पर्टिकुलर जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में, देन इन ऑक्यूपेशन में जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी या जॉइंट फैमिली मेंबर्स का जो ऑक्यूपेशन है, जो बेसिकली बिजनेस है, उसमें यदि कोई को शेयरर है तो वो भी इनको एज अ ऑस्टेंसिबल ओनर करके रिप्रेजेंट नहीं करेगा। दिस वाज हेल्ड बाय द कोर्ट इन द केस ऑफ लक्ष्मीबाई वर्सेस राजवी। एंड अ महंत ऑफ अ मठ प्रॉपर्टी, मठ जो होते हैं उसमें महंत हेड होता है, जैसा ट्रस्टी हेड होता है वैसा ट्रस्ट का, वैसा मठ जो है उसका महंत हेड होता है। बेसदेव गिर वर्सेस जुगराज प्रसाद, इसमें भी कोर्ट ने ऐसा हेल्ड किया था कि महंत जो होता है ऑफ द मठ वुड नॉट बी कंसिडर्ड टू बी द ओनर और वुड नॉट बी कंसिडर्ड टू बी द ऑस्टेंसिबल owner of this particular property which he having in his possession. And if they deal with any kind of transaction or they deal with any kind of they transfer any kind of interest to some another person whereby a property title goes away, then in that case such type of a transaction would be termed to be a void one, because all these persons, they are not an ostensible owner, nor they are real owner, nor they are having a right to sell out that particular property, and hence these persons would not be considered to be the ostensible owner. So students, today we have covered the concept of ostensible owner, who may be called as an ostensible owner, who may not be called as an ostensible owner, and what are the principles on the basis of which this section relies, what are exception to this. This is what we have completed. I think you have understood the concept, and thank you for attending